Okay, so tell me in the chat, should we solve today's contest problem or should we solve other problems? Okay, so people are saying today's contest problems. I don't know why it's still verifying. Why it's taking so much time. Finally. Okay, I should enter my account first. It will still verify this. So put a plus if you participated in today's contest and put a minus if you didn't. Okay, so some of you guys participated. That's nice. Nice. So a good amount of people participated in today's contest. I didn't. So I would be also solving the problems very first time with you guys. So I think let's start now. Can I submit the problems? Let me check this first. Okay. So there is a problem that I might not be able to submit my solutions because contest recently I think ended. There is tutorial. Okay, tutorial is already out. Okay, so we will solve the problem, then we can compare our solutions here, right? So that's good. So okay, let's start with the very first problem. Actually, I'm very bad in pronouncing names, so forgive me for that. If you want to spend the day with the Suzuka, whatsoever. However, the zoo is closed, so they are visiting Farmer John's farm instead. Okay, so let me tell you who is Farmer John here. He's a very famous character in competitive programming. So I believe this contest is made by some USA guys, like because in USA they have like every country you can say has some characters like when they in their TST is like team selection test. So when they make their own problems, they have some special character. Like Indonesia has a character named Duckling, so all the problems are based on the story of Duckling. USA has a character named Farmer John and his cows. You will mostly see the USA problems have this character. So I believe this contest is made by some USA people. Okay, so at Farmer Joe's farm, Yuzuko counts n legs. Okay, it is known that it is known that only chickens and cows live on the farm. A chicken has 2 legs, while cow has 4. Okay, as usual. Count how many total configurations of Farmer John's farm are possible. 2 configurations are considered different if they contain either a different number of chickens, a different number of cows, or both. Okay. Note that Farmer John's farm may contain 0 chickens or 0 cows. Okay. So how many of you understand the problem? Like what's the problem? Put a plus if you understand the problem. .
put a plus if you understood the problem and put a minus if you didn't. Okay, so the problem says in a farm there are like some animals that can be cow or there can be chicken. We don't know. Okay, so the information we know is the number of legs. Like for example, I tell you guys, I have 6 legs in my farm. So then I ask you, like, how many configurations are possible that in my farm, how like animals can be. So there are possible configurations are I have one cow and one chicken. Okay, so one possible solution is this. Then I have total 6 legs. And other, what is the other one? It's if I have 3 chickens. तो या मेरे पास 3 चिकन हो या एक चिकन और एक काऊ हो, तो टोटल मिला के 6 लेग्स बनती है. तो ये दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं इसके. So we are given the number of legs, total legs, and we have to tell how many different possible solutions are there. So how many of you didn't understood the problem yet? Put a minus if you didn't understood the problem. Put a plus if you have understood the problem. Put a minus if you haven't understood the problem. Okay, I will explain it again. Okay. Okay. Aham Hassan didn't understood it. So, for example, there is a farm. एक मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. एक फार्म है, उसके ऊपर जानवर है, लाइक जो या मुर्गियां हो सकती हैं या फिर गाय हो सकती हैं. तो मुर्गी के 2 पाँव होते हैं, जैसे कि पता है आपको, पंजे, और क्या कहते हैं, काऊ के 4 होते हैं. तो आपको जो टोटल पता है, फॉर एग्जांपल के आपको ये पता है कि इस जो लाइक फार्म के अंदर एनिमल रहते हैं उनकी टोटल टांगे काउंट, कोई बंदा आता है उनकी टोटल टांगे काउंट करके आपको बता देता है. लेट्स सपोज वो बताता है कि आपके टोटल जो टांगे हैं एनिमल्स की वो 6 है. अब आपने इस इंफॉर्मेशन से पता लगाना है कि कौन कौन से एनिमल्स हैं, मतलब उस बंदे के पास जिसका फार्म है उसके पास कितनी मुर्गियां और कितनी काउज हैं. तो अगर मैं कहता हूँ 6 है, आपको ये इन्फॉर्मेशन है, तो इससे 2 पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं. या तो उस फार्म के अंदर 1 काऊ और 1 चिकन है, ठीक है, तो क्योंकि 2 चिकन के पैर और 4 काऊ के 6 हो गए टोटल. और या तो 3 क्या कहते हैं, 3 की 3 ही मुर्गियां हैं, ठीक है, तो इस तरह 3 मुर्गियां होंगी तो 2 करके 6 हो जाएंगे. ठीक है, अब ये 2 पॉसिबल सॉल्यूशन है, तो इसका हमने आंसर किसको रिटर्न करना है, 2, कि हमारे पास 2 पॉसिबल सॉल्यूशन है. अब जैसे कि सैंपल टेस्ट केसेस देखो, इधर 5 सैंपल टेस्ट केसेस है टोटल. सबसे पहले 2 का आंसर कितना है. 2 अगर कोई कहता है कि एक फार्म है उसके अंदर 2 लेग्स हैं, तो कितनी उसकी टोटल कितनी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बताओ जरा चैट में. एक सॉल्यूशन हो सकता है कि मुर्गी के 2 पाँव हो सकते हैं, इसका मतलब काऊ तो उसके पास नहीं हो सकती, दैट्स प्रीटी ऑब्वियस. अगर तीन तीन वो कहे कि 3 लेग्स हैं, तो 3 लेग्स का क्या सॉल्यूशन होगा, 0 होगा. लाइक इट्स नॉट पॉसिबल कि 3 का क्या कहते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. कि 3 कैसे हो सकता है, कि अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक काऊ है तो वो तो 4 होते हैं, तो वो पॉसिबल है. एक मुर्गी है तो फिर 1 लेग तो किसी की होती नहीं है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल. ओके, तो ये हमें इस तरह बताया हुआ. 4 होंगे तो 4 का क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है, अगर कहता है कोई 4 लेग, 2 है. इसी तरह आगे 6 का जो हमने पहले डिस्कस किया 2 है. 100 का उसने 26 बताया हुआ. 100 का वैसे कंप्यूट करना इट्स नॉट इजी. तो जो 100 है उसका वैसे तो कंप्यूट करना इजी नहीं है, बट हम इसका एक सोल्यूशन निकालेंगे जिससे हम कंप्यूट कर सकते हैं. सो अब मुझे भी सोल्यूशन नहीं आता अभी तक इसका क्या होगा, बट लेट्स लाइक सॉल्व इट टुगेदर. ओके, तो इस पूरे जो है अभी प्रॉब्लम के अंदर कोई एक चीज आपको लाइक आपने कॉमनली सोची हो कि यार इसका तो सोल्यूशन हमें पता है कि अगर ये वाला नंबर आएंगे तो हमें उसका आंसर पता है. इवन पर 0, odd पर 0. So Rumesa is saying and is saying अगर odd होगा तो odd पर 0 होगा. So किस किस को लगता है ये बात ठीक है, पुट अ प्लस. और जिनको लगता है नहीं ऐसा मतलब समझ नहीं आ रही, मतलब कैसे odd पे 0 होगा. लाइक फॉर एग्जांपल somebody says 99 लेग्स हैं, तो 99 लेग्स का क्या आंसर होगा. कोई कहता है 99 लेग्स का सोल्यूशन 0 सोल्यूशन है, 99 के 0 सोल्यूशन है, तो इज इट राइट, लाइक
मेक सेंस? यस, तो क्योंकि इसकी रीजन ये है कि जो मुर्गी है उनके भी दो है, जो जो काव है उसके डबल है, इवन है, तो इवन 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 प्लस इवन 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 ही होता है, तो एक लाइक ऑड नंबर ऑफ लेग्स नहीं हो सकती किसी की भी, राइट? सो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो अगर ये किसको समझ आए, किसी को ये बात समझ ना आई हो कि अगर ऑड होगा तो आंसर जीरो होगा, पुट अ माइनस इन द चैट। ऑड के लिए माइनस होगा आंसर, किसको ये बात समझ नहीं आई वो चैट में माइनस पुट कर दे। ओके, सबको समझ आ गई, राइट? अब इसको फर्दर अब हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा कहीं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, वेट 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 वेट, okay, let me share with you guys something. Okay, can you see the screen? Okay, so let's do it here. Okay. ओके, सो अब हमारा जो, अब हमने, हमारे पास जो अभी तक सोल्यूशन बना है वो ये है कि ओके, दैट फॉर ओके, ओके, सो odd the number is equal to नो, मतलब जीरो। सो दैट्स जो हमने अभी तक सॉल्व किया है वो ये है कि अगर और नंबर आ जाएगा तो इट्स जीरो डायरेक्टली, राइट? तो ये आ गया, अब पीछे रह गया, इट मीन इवन होंगे सारे नंबर्स। और अब अगर आप प्रॉब्लम के स्टेटमेंट जरा देखें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर मैं जरा स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर देता हूँ। यस, ये देखें, तो ये टॉप के ऊपर अगर आप देखें तो हमें ये पता है कि हमारा जो नंबर है वो 1 से लेके 100 तक के दरमियान में हो सकता है, राइट? सो इट मींस मैक्सिमम मिनिमम हमारा जो इनफो नंबर गिवन है वो 1 हो सकता है, मैक्सिमम 100 हो सकता है। सो हमने इसके लिए सॉल्व करना है। अब आगे क्वेश्चन आ जाता है कि चले ऑड के लिए हमें पता चल गया, अब हमने इवन्स के लिए देखना है। तो 2 के लिए क्या आंसर है? 1, राइट? 4 के लिए क्या आंसर है? 2, राइट? 6 के लिए 2, 8 के लिए क्या होगा? एनी गेसेस? 8 के लिए एक 3 बता रहा है। अच्छा, 3 कैसे होगा? या तो दो का हो सकती है 4 4, या हो सकता है 2 2 4, या हो सकता है 2 2 2 2 2, राइट? तो दैट्स करेक्ट। सो देयर टोटल पॉसिबल हो सकता है, देयर आर 3 सॉल्यूशंस, राइट? 10 के लिए क्या सॉल्यूशन होगा, सोचना चाहोगे?
10 के लिए 4 होगा। एहसान कह रहा है 3 होगा, तो वैसा कह रही है 4 होगा, एहसान अभी भी 3 कह रहा है। सो 4 कैसे होगा, लाइक 4 डिफरेंट सोल्यूशन क्या होंगे? रुमैसा या फिर नूर फातिमा, आप चैट में लिख के बताओ जरा, क्या 4 सोल्यूशन होंगे डिफरेंट पॉसिबल? तीन होंगे। नूर फातिमा आप बताओ कितने होंगे? वी आर ऑन द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ टूडेज कॉन्टेस्ट। आज जो डी 3 था उसका पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। उसके लिए उसका भी आंसर 3 होगा मेरे फातिमा। उसका 8 के लिए भी आंसर 3 होगा और 10 के लिए भी आंसर 3 होगा। अब वो क्यों 3 होगा, लेट्स डू इट हियर। एक सोल्यूशन हो सकता है 2 2 2 2 2 इज इक्वल टू 10 टोटल, दैट्स वन पॉसिबल सोल्यूशन। एक हो सकता है 2 2 2 2 और एक 4 कि एक काउ है, दैट इज आल्सो इक्वल टू 10। अदर सोल्यूशन इज 2 2 एनी अदर 2 4 4 इज इक्वल टू 10। यही सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन जो है ना 2 4 2 2 दैट सेम द अबव के तीन क्या नाम है, चिकन है और एक काउ है। सो ऑर्डर डजंट मैटर, आप जिस ऑर्डर में मर्जी लिखो। सो अगर डिफरेंट ऑर्डर में लिखोगे वो एक ही काउंट होगा। सो दिस इज द सोल्यूशन। अब यस दैट्स शहरोज ने सही आंसर लिखा है, यही यही इसके 3 सोल्यूशन है। अब आ जाते हैं 12 के ऊपर। सो 12 का क्या आंसर होगा, कोई बताना चाहेगा? 12 का आंसर 4 होगा। ओके, लेट्स चेक इट आउट। 2 2 2, एक तो बड़ा बेसिक्स है कि सारे चिकन हो, ठीक है, तो इट्स इक्वल टू 12 राइट। अब इनमें से ये हो सकता है कि हम आखिरी दो को मिला के एक बना देते हैं काउ, ठीक है, आखिरी दो को मिला के काउ बना देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 2 2 2 और ये एक बन गई काउ। सो दैट्स आल्सो 12। देन एक है कि अब इन दोनों को मिला के हम एक काउ बना दें। सो 2 2 4 4, ये एक सोल्यूशन आ गया। फिर आएगा, फिर इन दोनों को भी काउ बना दें 4 4 4। तो हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ चिकन डिक्रीज करते जा रहे हैं, दो चिकन को कम करके उसको एक काउ से रिप्लेस कर देते हैं, राइट। दैट्स हाउ इट्स वर्किंग। अगर हमने सोल्यूशन फाइंड करना है तो हम इनिशियली अज्यूम करते हैं एक सोल्यूशन है जिसमें सारे चिकन है, राइट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेप पे दो चिकन को मिला के एक काउ बना देते हैं, ऐसे ही कर रहे हैं ना, समझ आइए बात। अगर नहीं आई तो माइनस पुट करो चैट में, अगर आ गई तो प्लस पुट करो। अब इसी तरह हमारे लिए 14 का आंसर निकालना भी इजी हो गया। ये अगर इसी एल्गोरिथम को फॉलो करें हम 14 का आंसर निकालते हैं। सो दैट इधर एक 2 ऐड किया, सो देयर आर टोटल 14। तो एक तो था कि इधर ये एक बन गया, राइट। तो ये इन दोनों को मिला के एक 4 बना दिया, फिर इन दोनों को मिला के एक 4 बना दिया, ठीक है, ऐसे ही किया ना, फिर इन दोनों को मिला के एक 4 बना दिया। सो इस तरह हम करते गए। तो ये मोइन प्लस माइनस क्यों पुट कर रहे हो, और ये एहसान को पता नहीं क्या सूझ रहा है। अच्छा, तो ये आ गया, राइट। तो इससे भी हमें, इसके भी 4 सोल्यूशन है टोटल पॉसिबल, तो इधर 4 आ गया। ओके, अब इसमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है आपको? ये जो हमने पूरा इतना बड़ा बनाया है, इसमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है आपको? इसका क्या आंसर होगा, कोई गेस करना चाहेगा विदाउट सॉल्व किए? 5। 18 का क्या आंसर होगा, गेस? नहीं, ऊपर पैटर्न देखो जरा, इसको इधर से, इसका पैटर्न थोड़ा बनाओ जरा ऊपर से। जीरो का, जीरो इज इक्वल टू, जीरो का कितना सोल्यूशन होता है, एक ही होता है बाय द वे, लाइक जीरो इज आल्सो अ सोल्यूशन। So double one, double two, double three, double four. 18 is also 5. 20 is 6. 22 is also 6. So ये एक पैटर्न बन रहा है। तो इसको मैथमेटिकली अगर मैं आपको ये वाला नंबर दूं तो कोई फॉर्मूला बनाओ जिससे हम ये निकाल सकें।
एहसान, जिन्होंने कॉन्टेस्ट में इसको सॉल्व किया वो जरा आंसर ना करें आज, जिनको ने अभी 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 जिनको जेन में फॉर्मूला आ रहा है तो वो तो फॉर्मूला बताएं इसका क्या होगा। कि अगर मैं आपको ये वाला नंबर दूं, एक एफ ऑफ एक्स बनाए, ठीक है, जिसमें एक्स की वैल्यू अगर मैं ये वाली साइड वाली पुट करूं तो उसकी वैल्यू ये वाली आ जाए साइड पे। सीलिंग ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। एनीवन एल्स? n डिवाइडेड बाय 2 या n डिवाइडेड बाय 4? आई थिंक कॉम्बिनेशनल फॉर्मूला तो नहीं लगेगा इसमें, अलजेब्रिकली लगेगा। लाइक आप पैटर्न देखो ना, लाइक एक में लिखा है n डिवाइडेड बाय 4 प्लस n परसेंट 4, ये वाला फॉर्मूला काम कर रहा है। n लेट्स सपोज 14 पे चेक करते हैं आपका फॉर्मूला। 14 डिवाइड बाय 4, अगर इंटीजर डिवीजन की बात कर रहे हो आप तो ये आ जाएगा, क्या आएगा, 3, 3 प्लस 2 5। गलत हो गया, किसी का भी अभी तक सही नहीं आया। फॉर्मूला बताओ, जल्दी करो, सोचो 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 जल्दी। ये आपके सामने लिखा हुआ पैटर्न, इस तरह का पैटर्न है। अब इसका जरा पैटर्न इस तरह देखो, जब भी 4 का मल्टीपल आता है ना तो हमारा आंसर में एक इंक्रीज हो जाता है। जैसे 8 आया, 8 इज मल्टीपल ऑफ 4 तो आंसर में 1 ऐड हो गया, बाकी सब पे 3 रहा। तो चलो अगर हम इसमें सबसे पहले तो इसको डिवाइड बाय 2 कर लें, अगर तो सबसे पहले इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 0 रहेगा, ये 1 बन जाएगा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and then 10। सो ये इस तरह बन गया, ठीक है। अब इसको, ये जो मुझे पैटर्न नजर आ रहा है ना, इसको एक दफा दोबारा डिवाइड बाय 2 करें। सो दिस वुड बी 0, ये भी 0 हो जाएगा। इंटीजर डिवीजन की बात करो, दिस वुड बी 1, ये भी 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। आपको याद है समझ? दो दफा हमने डिवाइड बाय 2 किया है, सो इट इज, ये देखो 0 0 पे 1 है, 1 1 पे 2 है, 2 2 पे 3 है, 3 3 पे 4 है, 4 4 पे 5 है, 5 5 पे 6 है। सो वी जस्ट हैव टू डू 1। सो हमने पहले इसको, जो मेरे ख्याल से फॉर्मूला बन रहा है दैट इज f ऑफ n इज इक्वल टू इंटीजर डिवीजन, ठीक है, ऑफ n डिवाइड बाय 4 प्लस 1। समझ आई सबको? जिसको समझ नहीं आई वो जरा चैट में माइनस करें, हम इसको जरा किसी दूसरी तरीके से भी सॉल्व करते हैं। जिसको समझ आई वो माइनस पुट करे, जिसको समझ आ गया वो प्लस पुट कर दे चैट में। नहीं समझ आई कोई इतना, ठीक है। साद मुनीर को समझ नहीं आई, एनीवन एल्स? दरीश शाह, नो प्रॉब्लम। अच्छा साद मुनीर को समझ आ गया, दरीश शाह को नहीं समझ आई। एनीवन एल्स जिसको समझ आई? इज देयर एन इवन फास्टर वे टू डू इट? लाइक इससे क्या ज्यादा फास्टर वे? डिवाइड बाय 4 करके प्लस 1 करने में कोई मसला हो रहा है? लाइक ये सोल्यूशन है सिर्फ इसका। n गिवन है, n को डिवाइड बाय 4 करके प्लस 1 कर दो, दैट्स द आंसर। 100 का आंसर क्या था? 26 था ना, याद है किसी को? तो 100 डिवाइड बाय 4 इज कितना होता है? 25 प्लस 1 26। इट्स ऑफ 1। इससे ज्यादा तेज क्या करोगे? अच्छा अब दरीशा को समझ नहीं है, दरीशा कहाँ समझ नहीं है? आप जरा चैट में लिखोगे या फिर मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली में ये जो मैंने बाद में लिखे हैं ये सारे तो हमने एक कह लो वैसे ही बनाया है। ये देखो 0 था, तो यहाँ से 0 करो। 2 पे आंसर 1 था, 4 पे आंसर 2 था, 6 पे आंसर 2 था, 8 पे आंसर 3 था, 10 पे आंसर 3 था, 12 पे आंसर 4 था, 14 था, 6 पे, इस तरह करके सारे हमने एक पैटर्न हमने फाइंड करने की कोशिश की। तो ये हमने पूरा सोल्यूशन किया पैटर्न फाइंडिंग से। अच्छा समझ आ गई है?
सो इट्स बेसिकली हमने एक फॉर्मूला बनाया जो कि हमें ये वाला नंबर हम उसको इनपुट देंगे और वो हमें आउटपुट ये वाला नंबर देगा। तो हमने इसका पैटर्न क्रैक किया कि हमने कहा डिवाइड बाय 2 करके ये बना, फिर दोबारा डिवाइड बाय 2 किया, मतलब टोटल डिवाइड बाय 4 किया तो ये बन गया। 0 0 पे 1 1 1 1 पे 2 2, तो जब इसमें हमने +1 करेंगे तो दैट वुड गिव द आंसर। सो लेट्स राइट द कोड। ओके, आई थिंक सॉल्यूशन सबको क्लियर है, तो जल्दी से इसका कोड लिख देते हैं। इट शुडंट बी दैट हार्ड, बस मैं लिख देता हूँ क्योंकि सबमिट आई थिंक प्रोबेबली ना हो, सो लिखते देते हैं। ओके, सो ओके 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 ओके, आई थिंक मैं एंटायर स्क्रीन ही प्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस, आ रही है सबको नजर। ओके, सबलाइम टेक्स्ट, सो लेट्स राइट द कोड। साइज क्लियर है? साइज सबको नजर आ रहा है कोड अगर मैं लिखूं? आई गेस यस, आ रहा है सबको नजर, ठीक है। सो लेट्स राइट, काफी दिन से मैंने कोड नहीं किया, हाथ सुन। सबसे पहले हम करेंगे IO स्ट्रीम इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जो मैंने पहले कहा था, ये आपने थोड़ा सा कोड याद कर लेना है। यूजिंग नेम दैट इज जस्ट, कह लो कि ये चीजें आपको पहले ही याद होनी चाहिए। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर C++। ओके, दैट्स अ वेरी बेसिक टेम्पलेट। अब हमने कोड लिखना है। तो जो मैंने लास्ट, अगर किसी ने सेशन लिया, अगर नहीं लिया तो वो जाके यूट्यूब वीडियो भी देख ले, जो हमने उसमें मैंने अपलोड किया यूट्यूब पे। वो ये था कि अब प्रॉब्लम में देखो जरा, उसने कहा है कि द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट जो हो गया वो शेल कंटेन t, दैट इज नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। इस इनपुट में देखो आप, पहले उसने बताया कि कितनी दफा वो हमसे पूछेगा। जैसे हमने, हमारा क्वेश्चन था ना कि वो हमें नंबर ऑफ लेग्स बताएगा, तो ये बता रहे हैं कितने क्वेश्चंस करेगा वो। तो 5, उसने फिर उसके बाद 5 डिफरेंट नंबर पूछे उससे, और उसने 5 दफा आंसर किए, और ये एक ही दफा में होगा कोड जब रन होगा। सो वी हैव टू फर्स्ट टेक, ओहो, ओके ओके, इस तरह कर लेते। ओके, ये हमने लूप लगा ली, ठीक है, फॉर लूप लगाई कि हमने t दफा इसका आंसर आउटपुट करना है, राइट। अगर या तो इसका ये भी तरीका हो सकता है कि इधर मैं एक सॉल्व का फंक्शन बना लूं, इसको बार बस t टाइम्स कॉल कर दूं। जिसको समझ ना आ रही है वो चैट में जरा मैसेज कर दे कि ये वाली चीज मुझे समझ नहीं है। तो अब हमने n इनपुट लेना है, ठीक है, इनपुट ले लिया n, जो कि था, ठीक है, जिसको पाइथन में आपने अगर लेते तो पाइथन में इस तरह आप इनपुट लेते हैं कि n इज इक्वल टू इंट इनपुट, राइट। तो ये हमने पहले n को डिक्लेयर किया ऊपर, और फिर उसके बाद नीचे हमने उसको C++ के वे में इनपुट ले लिया। ओके, एंड देन अब हमने आउटपुट करना है, दैट्स इट। आउटपुट क्या करना था, n डिवाइड बाय 4। C++ में जो सिंपल डिवाइड है वो सिंपल डिवाइड का सिंबल इंटीजर डिवीजन करता है, पाइथन में आपको डबल डिवाइड लगाना होता है, राइट। इसमें डबल डिवाइड नहीं लगाना होता, और जो इसमें डबल डिवाइड जो का सिंबल यूज होता है कमेंट करने के लिए, पाइथन में हैश यूज होती है ना, लाइक पाइथन में इस तरह कमेंट करते हैं आप किसी भी चीज को हैश लगा के, बट इसमें आप डबल डिवाइड का सिंबल लगा के कमेंट करते हो। सो पाइथन C++ के अंदर इंटीजर डिवीजन होती है, अगर आप इंटीजर को इंटीजर पे डिवाइड करोगे, 4 इज एन इंटीजर, तो वो इंटीजर डिवीजन ही होगी। सो राइट, ओके, and then we have to just, oh, what's happening, put a +1, and अब मैंने एक और चीज बताई थी लास्ट सेशन में, अगर किसी को याद हो, मैंने कहा था कि अगर तो
आपने न्यू लाइन प्रिंट करनी है, जैसे पाइथन में होता है। पाइथन में अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल पाइथन में लिखता प्रिंट व्हाट्सएवर जो भी था एंड डबल डिवाइड बाय 4, आई थिंक यही था, +1, बस वो खुद ही न्यू लाइन पे चला जाता। बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर सी प्लस प्लस में आपने करना है तो उसको दैट वुड बी सी आउट, वो नंबर करेंगे आउटपुट, जैसे इधर सी इन किया था, यहाँ पे सी आउट, एंड देन you have to put an endl at the end, right? So I'm just removing that. So हम इसको locally run करके check कर लेते हैं, so will this answer me correctly or not? Okay, so there were total 5 questions, right? Let's check it out. 2 3 4 6 and 100. So for 2, then 3, वो ये क्या हो रहा है? Okay, 4, wait, सेव नहीं किया थी मैंने। 5, यस, 2 का आंसर क्या था? 1 था, 3 का 0, 1 आ गया, क्यों आया? एनीवन पॉइंट आउट करेगा कोई मिस्टेक? ऑड, हमने ऑड के लिए स्पेशल कंडीशन नहीं लगाई, ठीक है। सो हम इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि इफ n%2 n%2 डबल इक्वल टू 1, ठीक है। सो देन इट वुड, क्या करना चाहिए इसको? सी आउट 0, एल्स, दैट्स इट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने इधर ब्रैकेट्स क्यों नहीं लगाई, ये वाली, राइट? इसका ये आंसर है कि जब आप ये वाली कंडीशन के बाद एक लाइन लिखते हो ना, लाइक 1 लाइन, तो आपका कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है कि वो इसको कंसीडर, उसको पता चलता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इफ कंडीशन लगाई है, देन माय कंपाइलर नोज कि मैंने इसके बाद कुछ ना कुछ तो लाइन लिखनी है ना, तो जो पहली लाइन है वो उसको इसके अंदर अंडर ही कंसीडर करता है, स्कोप के अंदर ही, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरी लाइन लिखता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इधर एक और लाइन लिख देता हूँ, सम फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 1 एनीथिंग, तो अब कंपाइलर को ये नहीं पता कि ये लाइन स्कोप के अंदर इंक्लूडेड है या नहीं इंक्लूडेड। तो फॉर दैट रीजन हमें ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं, फॉर के जब मल्टीपल लाइंस होती हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर सारा कोड है वो आप इफ कंडीशन के अंदर है। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि सी प्लस प्लस इज नॉट इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज, तो आप चाहे जितनी मर्जी इंडेंटेशन जहां मर्जी आगे पीछे कर दो, उसका नहीं होता मसला। तो लेकिन अगर एक ही लाइन सिर्फ आपने लिखनी है, देन इस ब्रैकेट ना भी लगाओ, इफ कंडीशन को पता है कि दैट इज माय लाइन, लाइक ये नेक्स्ट लाइन जो है मेरे स्कोप के अंदर इंक्लूडेड है। क्लियर? समझ आई? किसी को समझ नहीं आई? कोटा माइनस, किसी को समझ नहीं आई तो माइनस पुट कर दे चैट में, अगर आ गया तो प्लस पुट कर दो सारे। ओके, तो लेट्स नाउ, ओके फिर से सेव नहीं किया था। फाइव, 2 का आंसर क्या था? 1, 3 का आंसर 0, 4 का आंसर 2, राइट, करेक्ट। उसके बाद 6 का आंसर 2, करेक्ट। 100 का आंसर क्या आना चाहिए? 26, करेक्ट। तो ये हमारा कोड करेक्ट है। अभी लेट्स सी अगर कोड फोर्स सबमिट करना अलाउ कर रहा है तो। नहीं, कोड फोर्सेस अभी सबमिट करना अलाउड नहीं कर रहा, बट माई सोल्यूशन इज राइट, ओके, आई एम प्रीटी श्योर। सो यही हमारा कोड है, ओके। सो अच्छा, अब बताओ अगली प्रॉब्लम करनी चाहिए या फिर हमें किसी और कॉन्टेस्ट की इजी प्रॉब्लम्स पे चले जाना चाहिए, और शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम? ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट, ओके। काफी बोले, थोड़ा सा सांस ले लूं मैं।
एक दफा ये सारे खुद से प्रॉब्लम पढ़ो। Yes, I am planning to solve as many problems as we can. Yes, I will upload the stream on YouTube, hopefully, but not sure if I have enough data. YouTube चैनल का लिंक मैं जरा चैट में शेयर कर देता हूँ। इट वाज आई थिंक, आप नाम सर्च कर लो, आपको शायद मिल जाए। इट वाज competitive programming with Umair Mirza. That was the name of YouTube channel. सर्च कर लो, अगर मिले तो बता दो। मैंने पिछले सेशन उसमें अपलोड किया हुआ है, पिछले में भी हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। चलो अभी कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लो थोड़ा, मतलब और किसी टॉपिक के ऊपर। अब अगली प्रॉब्लम अभी 5 मिनट बाद सॉल्व करते हैं। अच्छा, आप लोगों में से किस किस ने आज कॉन्टेस्ट दिया था? अपना कोड फोर्सेस आईडी जरा चैट में सेंड करो, चेक करते हैं आप लोगों के सॉल्यूशंस। अगर तो चेक करना अलाउड है, होपफुली होगा या नहीं है अभी। ओके, सबसे पहले इन्हीं का चेक करते हैं। ओके, एहसान अहमद। ओके, ये आ रहा है। नाइस, यू हैव 1303 रेटिंग, दैट्स गुड। आपने काफी सारे कॉन्टेस्ट दिए हुए। You started in last May? Yeah, that's great. So you have a quite an experienced guy. Very good, very good. Okay, so let's check your submissions. Okay, so in today's contest you solved a. Oh, so you participated with in Python. So you used Python for first A, B, and C one, and then you solved D. Good, not bad, great. Let's check your solution. Bismillahir Rahmanir Rahim. Okay, for understanding range input, if I percent to odd and if okay, so you solved correctly. So that was the E. I solved one in D2. Okay, D2. Yes, I am seeing that you solved a problem with the code in C++. That's nice. Hopefully. There is something one from BSS Shahzan. Okay, so let's check. Okay, San Ahmad. I think I added you as a friend or not. I'm not sure. Okay, let's add you as a friend. Okay, who is the next person? Saad. Okay. Okay. 1 minute, guys. 1 minute. Okay. So you also participate. Okay. So you also participated in the contest before. That's good. When did you participated? In 68 months recently. That's nice that you guys are participating in contests. So let's check your submissions. Wait, what? Okay. So you had a compilation error and then you submitted it. Okay, first check the compilation error. I probably wouldn't be able to find that compilation error. Maybe
whatsoever. Let's check it out. So you write a code, first you output it something to just increase your क्या कहते हैं speed of output, input output speed. Okay, then you out quite complicated way to write code. Try to make your code readable like as much as possible. Don't write like this type of silly codes. Like I'm not saying it's silly, but it's like yes, it's very good for you like you can read it, but try to write codes which are more human like which is more readable for humans. Machine can read every code. Like if you write code in a very bad way, machine can read it. But try to write code which a human can read it. Human can read it. So okay, you defined an x. So x is your variable to answer. Exactly. You have done the same solution. Good. Who is else? I think this would be last one. I am not going to check Shazan's probably code. He's a VSS guy. I know he learned some coding, so I would be interested in others. But if he insists, we can check it. Which is Aruj. Nice. Already participated in 2 contests, 16th November, and then okay, nice, very nice. Let's check it out. So you all solved your first solution code today, like first time you solved a problem in a contest. That's really great and encouraging. I hope, believe. Yes, and you took a number n as an integer. Then if it is an odd, you put exactly same solution. Very good. Like this code is probably much more readable and you can say easier. It can be improved, but it's nice actually. Okay, one last moment. Okay. Oh, nice, nice, nice. LGS JT boys. So you participated in July. It's strange. Yeah, you are like old guy participating in contests for a long time. That's really nice of you. You recently participated in 6 number contest. You participated in 10th number. You are getting plus plus plus. That's probably okay. Oh my god. Oh, you didn't participate in today's contest, moment. Or did you? You didn't participate in today's contest, Momin Khan. So this is, I believe. Okay, you submitted but didn't participate in the contest. How you? Achha, okay, so we are able to submit. We are able to submit the codes now. Let me check. Okay, so I didn't registered. I think that's why I'm not able to. That's okay. Okay, let's move on to the next problem. So I believe this fruit should be harder than the previous one. And okay, next problem. So next problem is I don't know blah blah and minimum absolute sum. Okay, so this is just some story. Just ignore it. I don't know, like no use. So you is trying out the student council. Unfortunately, she is being forced to do whatever. So this is just a story.
Doesn't make sense. You are given a partially filled an array of non-negative integers, okay, where a blank element is denoted with -1. You would like to fill the blanks with non-negative integers such that the absolute sum of the elements in the difference array is minimized. Okay, more formally, let P be the, okay, so this is more formally explained as the problem. More formally, let B be an array of length n minus 1 such that B of I is A of I minus 1. Okay, two, like it's the difference of two adjacent elements, and find the minimum possible value of B. Okay. Okay, so you are asking why didn't I participate? Actually, I don't have that much time, probably, or I'm too lazy. Actually, I have other things to do, so that's why I'm not participating. So I thought it would be good to solve with you guys than solving alone. So, okay, problem number 2. स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? Okay, so problem here, let's say array A is an array list random numbers 5, 9, 10, 3, 7, 0, or 0, non-active 0, 5. Okay, so this is an array, right? So now he is saying that there is an array B. So this is an array A, small a. So there is an array B which is defined as the difference array. So what is the difference array? Difference array is the difference of these two elements, adjacent element. The next element minus previous element. So 9 minus 4 is 9 minus 5 is 4. Okay. 10 minus 9 is 1. 3 minus 10 is minus 7. Then 7 minus 3, 4. Then 0 minus 7, minus 7 again. And then 5 minus 0 is 5. So this is also an array. So how many elements are in A? There are I believe 7 elements, and then there are 6 elements in array B. So if the length of A is n, then the length of B is n minus 1, right? Understood? नहीं समझ आई तो चैट में जरा लिख दें जल्दी से. Okay, so that's the problem but saying. So we are not discussing the solution right now. We are just trying to understand the problem. Okay. So okay. So the problem now says that there would be some minus. Let's take some example from here. Okay, so this is an array given in the input. So what they are saying, if there is a -1 in the array, that means it's a blank. So you can just put a underscore there instead of. So they just added a -1 to represent that position is empty, right? So we can put a dash over here, and then they said that what would be the B. We don't know what is the element here, so let's name it any element. Let's say it's X, and then name it's Y. So what would be the difference here? That would be X minus 2, right? Then 1 minus X, right? Can B be negative? Yes, there can be negative elements in B. Yeah, I will upload this on YouTube, no problem. There is a 4, then there is a 6, then there is a
1, then there is a minus 11, and then there is a y minus 1. Okay, so this is the array B. Okay, so difference array. So there were 8 elements there, there are 7 elements here, so that's what it is. Now what's the problem? So you are given a partially filled array with non-active integers where a blank element is denoted with a -1. You would like to fill in the blanks with non-active such that the absolute value of the sum in the element array is minimized. Okay. So just in case we suppose that x is equal to 1 and y is equal to 2. Okay, just for a case. So then what would be here? What would come here? X is 1, so there would be -1, right? And x is 1, so this would be 0, and y is 2, so this would be 1. Then it's saying that the sum of this array B should be so what is the sum of this array? Minimized, yeah. So what is the sum of this array? Right now, what is the sum? So this is 11, so it's 0, I guess. It's already 0. Nice. I think it's 0. I'm right. Am I right? So let's change y. Let's say y is -1. Then what would be the answer? There would be -2. So what's the -3? 11. There is a positive 11 and then -3, I believe. Am I right? Yes. So now it's -3, right? The sum of this array is -3. But they're saying that absolute value. So you know that what's the absolute value of a sum? Absolute is the ignoring the minus sign. So just ignore the minus sign. So it's 3. So it's 3. So they are saying that we have to minimize the absolute value. So it means we have to make it as close to 0 as possible. So we have to make the sum of our, like for example, if the current sum is in -3, then we have to like -3 is equivalent to 3. Just take an absolute value. So we have to make it closer to 0. So minimizing here, it means make your number sum close to 0. Okay. And additionally output the array that achieves that minimum. Do you guys have any solution? I can't think of one right now because I haven't solved this problem. I have to think about it. So you guys have a solution. Very nice. Ehsan Bhai 1122. Very nice. You have a solution. Anybody else? Okay. Okay. So Ehsan is saying the -1 in the middle are irrelevant. Okay. So now write it back in terms of x. And so what was our sum? X minus 2, right? Then what was, sorry, x minus 2, then the next number was 1 minus x, then 4, 5 minus 1, then 6, then 1, then -11, and then y minus 1. So when we add all these numbers, so there would be plus x and there is a minus x, so they would be cancelling with each other, right? So if there is so this x would be cancelled.
and then like add these two value, what would be the answer? It would be -2 plus 1, isn't it? -2 plus 1. Codeforces summations are open now. Let's check if it's open. No, it's not open yet, bro. Okay, let's get back to the solution. Okay, so whenever there is a number, let's for example there was a z in here, we don't know. So in the difference array, that would be z minus 1 and 11 minus z. So when we would add these two numbers, the z would be cancelling. So like for example, what would be here, come here, first there would be a z minus 1, right? Then there would be a 11 minus z, and we will add both of them. So minus z will cancel with z, right? So what would be the answer? 11 minus 1. So here will come 11 minus 1. So which is same as ignoring this z. Just ignore this z. That would be 11 minus 1. Understood? Put a plus if you understood this and put a minus if you didn't. So the conclusion we can make from this all thing is, if there is an unknown element in between, then we can just ignore it. It will not make any effect on our sum. Plus, Saad Munir put a plus. Okay. So what we can put on these places, we can just put a 0. We don't care. So like this x doesn't contribute to anything, so we can just put a 0 over here. Now comes y. Actually, y would be considered as, because there is, it's not in the middle. Y is not in the middle, so we will consider y. Okay, because at the end, what would be there would be a y minus 1, and there is no other next element, then we cannot cancel y. That means we have to keep track of y. Okay, so now let's say that there is x here. Got it? Now how will this affect our solution? So like now we have to make our solution as close to you can say 0 as possible. Okay, just ignore y as well. And what is our solution? That would be 0 minus x, then 1 minus 0 1, 11 minus 1, that is also 10, that's 10, 12 minus 11 1, and then is minus 11. Add all of them. What is the sum? Minus 11, this is also 11, it will become 0, and that would be 1 plus the 1 minus x. So the whole answer is 1 minus x. So we have to make it as close to 0 as possible. So we can just make it equal to 0 by putting x equal to 1, right? So that way we can find. So if there is a unknown element in the beginning, then what we can do, and there is no other, like, and there is no unknown element at the end, there is only x, then what we can say, we will take the sum, right? So I even understood it or not? Right. Okay, so one more thing, now let me tell you. We
are trying to find a solution to this. Like we have to fill in the blanks. So there was a there is an array, there are some fill in the blanks in that, and we have to fill it with numbers, so that the at then the difference array we have to find a difference array, and then we have to find the sum of that array. And what we want is the sum of that array is close to 0 as much as possible. Okay, so now firstly हमने पहले ये देखा कि if any number is in the middle हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज क्या किया देखो 12 माइनस 11 एंड देन 12 में से माइनस 11 करेंगे और तब 11 में से माइनस 1 करेंगे, तो 11 कैंसिल हो जाएगा। लाइक ये देखो ना 12 माइनस 11 यही नंबर था डिफरेंस अरे में, और एक नंबर था हमारा 11 माइनस 1, so ये नंबर आपस में कैंसिल हो जाएगा। so 11 doesn't make any sense, so we can remove 11. then same ये 12 जो दरमियान में आ रहा है, this doesn't make sense, so the only thing which actually is relevant is first and the last number. so जो आपकी पूरी अरे का जो सम होगा ना, अब मैं इसको जरा आपको ना इधर से समझाता हूँ, आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। let's say A B C D E F, this is your array. okay, so what is the difference array? B minus A, then C minus B, then there is a D minus C, right? then there is a E minus D, and then there is a F minus E. now look at this, this plus B will be cancelling with the minus B, right? so this is removed. then this C will be cancelling with minus C, so this is also removed. then this D will be removed with this minus D, and then this E will also get removed. so at the end that's minus A plus F. so what's the difference? F minus A, last number minus the first number, that's all actually the sum of our array, the difference array. Sum of our difference array is the last minus the first number, so that's why the number in between doesn't they are not useful. so at the end so what's our problem? The problem reduces to, we want to make our difference of last number minus first number as close to 0 as possible, right? so in this problem, take this, so this is the problem. so all these numbers in between are irrelevant, right? just remove them. so this minus 1 is a blank, so like they put a minus 1 when, so we can just put a variable here, like put a y. so what we want now, we want y minus 8 to be as close to 0 as possible. so just like, so what should be the value of y then, so that y minus 8 is close to 0 as possible? It's 8, right? so if one of them is known, for example, let's suppose if we know 8 because add then y minus 8, so if the last number is known, then we can put the same value. so if there is a same value on first and last number, then it's always 0. so what is our what is the best possible way to minimize? that is that we make the sum equal to 0. like हमने मिनिमाइज करना है, तो सबसे ज्यादा मिनिमाइज क्या हो सकता है कि हम उसको इक्वल टू 0 कर दें, और इक्वल टू 0 करने का क्या तरीका है कि दोनों को सेम पुट कर दें। सो इफ अगर तो दोनों लेट्स सपोज फर्स्ट और लास्ट नंबर एग्जिस्ट करता है, लाइक पहला और लास्ट नंबर, लेट्स सपोज देयर इज अ ब्लैंक, और पहला भी -1 है, नहीं पहले इसको इस तरह नहीं करते, हाँ पहले पुट करते लेट्स सपोज पहले में 5 पड़ा है और लास्ट पे 8 पड़ा है, वी कैन मेक एनी चेंज, हम कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, राइट? सो हम जो भी सम होगा हमें वही प्रिंट करना होगा, लाइक दैट्स द सम, वी कांट डिक्रीज इट, ओके।
there is a -1 in the front and there is a any number, let's suppose 8 in the end. So we can make it by 0 by putting a 8 in the front as well. Same goes like if there is a 9 in front and there is a -1 at the end, we can just put a -1 and replace -1, make it same. If there is -1 it then like both are -1, just put a number, for example like maybe 0. Yeah, we can put 0. Why we can put 0? We should put 0 actually, because listen, like this last line, this output the array that achieves minimum, and if there are multiple such arrays, output the one with the lexicographically smallest. Lexicographically smallest is, do you know what is the lexicographic smallest thing? Let me tell you. Just search is like what is lexicographically, so you can find the definition of lexicographically. Lexicographically smallest string that appears first in the dictionary when all possibilities are listed alphabetically. So आप लोगों ने डिक्शनरी कभी खोल के देखी है ना, तो उसमें सबसे पहले होता है कि सबसे पहले सारे एलिमेंट सॉर्टेड होते हैं पहले लेटर के हिसाब से। तो जो जो लेटर ए से शुरू होते हैं वो स्टार्ट में आएंगे, चाहे जो मर्जी है, वो जितना लंबा मर्जी है, जितना छोटा है, जो भी है वो पहले आएगा। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड लेटर के हिसाब से सॉर्टेड होते हैं, देन थर्ड फोर्थ, इस तरह ऐसे ही होता है ना। तो इसमें भी यही है, अगर आपका नंबर फॉर एग्जांपल एक अरे है 1 2 3 5 4, ये आपकी एक अरे है, और इसके बाद है चाहे 0 है, और एक अरे आपकी 1 2 199 1 मिलियन, तो ये वाली जो अरे है दैट इज स्मॉलर, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये पहले आएगी। So that this array is lexicographically smaller than this array. For example, ये same है. Now which one is smaller? ये ऊपर वाली smaller है, because अब पहला एलिमेंट सेम है दोनों का, सेकंड एलिमेंट। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल इस तरह हो, which one is smallest? This one is smaller because why? इसकी लेंथ छोटी है। सो अगर किसी की लेंथ छोटी है और बाकी सारे एलिमेंट सेम है, देन इट विल कम फर्स्ट। तो आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी सबको लेक्सिकोग्राफिकली की। तो नाउ इसलिए अब हमने पहले लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनानी है, तो पहला एलिमेंट जो है वो हमने 0 ही पुट करना है। तो एलिमेंट जितना छोटा होगा वो उतना पहले आएगा, तो बड़ा एलिमेंट पुट करना बेवकूफ़ी है, इसलिए 0 पुट कर देंगे चुप करके। ठीक है, तो सब अब हम इसको ज़रा केसेस बना लेते हैं। अगर पहला एलिमेंट -1 है और आखिरी एलिमेंट सम वैल्यू x है, लाइक चलो कुछ भी है, तो क्या करना है, दोनों को अगर दोनों में से एक -1 है, वन ऑफ देम इज -1, क्या करेंगे हम, मेक देम सेम। सेकंड, both of them are -1, make them 0. None of them are -1, leave them as it is. राइट, यहाँ तक समझ आ गई सबको? पुट अ प्लस अगर समझ आई है, और अगर नहीं समझ आई तो -1 करो। अगर यहाँ तक जितने हमने स्टेप किए समझ आ गई है तो ठीक है, समझ आ गई है, 7 मिनट समझ आ गई। एनीबडी एल्स जिसको समझ नहीं आई, -1 पुट करें, हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, किसी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। समझ आ, ठीक है, समझ आ गई। अगर नहीं आई तो भी पुट कर दो, फिर आगे चले जाएंगे, फिर बाद में मसला होगा। ओके, समझ आ गई, ठीक है। अगर नहीं आई तो भी नहीं, ठीक, ओके राइट, जस्ट रिवाइज। ओके, तो रिवीजन दे देते हैं कि इसकी हमें प्रॉब्लम गिवन थी, ठीक है, उसमें हमें एक अरे गिवन होगी, ठीक है, एनीथिंग, उसमें ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे जो कि -1 से रिप्लेस होंगे। ठीक है, अच्छा, हमने ये और हमने एड करना क्या है, हमने करना ये था कि उनका डिफरेंस लेना था दो एलिमेंट्स का। ठीक है, इस तरह करके डिफरेंस लेके जो नीचे नहीं हो रहे बनी थी उनका सम लेना था।
तो हमने ये देखा कि अगर तो एलिमेंट दरमियान में है, इन दोनों का डिफरेंस नहीं, अगर 5 माइनस 2 और फिर -1 -5 करके जब नीचे लिखते हैं दो नए एलिमेंट, तो और फिर जब उनको ऐड करेंगे तो ये -1 डजंट मेक सेंस, इसको बीच में से रिमूव कर दो। तो सेंटर वाले एलिमेंट्स हमने वो फॉर्मूला लिखा था जिससे हमने ए बी सी वो आपने देखा होगा, तो दैट्स व्हाई सेंटर वाले एलिमेंट सम पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, चाहे जो मर्जी एलिमेंट सेंटर में आ जाए सम सेम ही रहता है, मतलब वो इससे इफेक्टेड नहीं होता है। एट द एंड सम हमारा क्या होता है, लास्ट एलिमेंट, जो हमारा एट द एंड मेन सम होता है वो ये होता है कि लास्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारा था, गॉट इट, ठीक है। तो ये हमारा था टोटल कह लो। अब फॉर एग्जांपल अब उसने हमें कहा हुआ प्रॉब्लम ये दी हुई है कि कहा है कि लास्ट एलिमेंट, मतलब आपने जो -1 है उसको रिप्लेस करना है किसी एक एलिमेंट के साथ, मतलब पॉजिटिव एलिमेंट या जीरो या किसी बड़े एलिमेंट के साथ, सच दैट जो आपका सम है, ठीक है, वो क्या हो जाए, जीरो के करीब तरीन हो जाए, लाइक मिनिमाइज करना है हमने उसको, मिनिमाइज करना है, मिनिमम हो। अब इसका इसका सम क्या है, लास्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, डिफरेंस रेट यही बनती है ना। अब दो एलिमेंट है, बीच वाले तो इग्नोर हो गए, तो इसका हमने फॉर्मूला निकाला था कि लास्ट एलिमेंट लास्ट माइनस फर्स्ट, ये हमारा सम है। तो अब हमने इसे रूल बनाया कि अगर तो हमारा पहला या लास्ट में से दोनों में से कोई एक -1 है, जैसे कि ये -1 था लास्ट, तो उसको हम अगर लास्ट के इक्वल रख दें, अगर ठीक है, तो जीरो आंसर आ जाएगा, ठीक है, दैट्स प्रीटी सिंपल। और अगर हमारा जो है लास्ट -1 के इक्वल हो जाए, तो इसको जीरो के इक्वल पुट, इसको फर्स्ट के इक्वल पुट कर दो, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, ये भी जीरो हो जाएगा, तो दैट्स हमारा सम अब जीरो हो जाएगा, जीरो से क्या ही ज्यादा मिनिमाइज होगा, ठीक है। अब दूसरा केस आ जाता है, दूसरा केस था कि बोथ ऑफ देम आर -1, ये भी -1 है, ये भी -1 है, तो हमने कहा दोनों को जीरो पुट कर दो, जीरो माइनस जीरो जीरो होता है, ठीक है, तो हमारा सम फिर जीरो हो गया। अब था कि नन ऑफ देम आर -1, तो इसका मतलब है हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, देन सिंपल है कि जो जैसे है वैसे प्रिंट कर दो, जो सम बनेगा वो वही होगा। तो हमने सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, सबसे पहले उसका हमने ये इनपुट में देखा, सबसे पहले हमने उस पूरे अरे का वो डिफरेंस अरे का सम प्रिंट करना है मिनिमाइज्ड, और फिर उसके बाद वो अरे प्रिंट करनी है, ठीक है। अब ये तीन पॉसिबल केसेस हैं, और हमने सबसे एक और जो चीज इससे पहले करना है वो क्या है, वो ये है कि अगर तो कहीं दरमियान में -1 आ जाए, जो हमने पहले देखा था, कहीं पे दरमियान में ब्लैक स्पेस आ जाए, उधर उधर जीरो पुट कर दो। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, इफ देयर इज अ -1 इन मिडल, मतलब फर्स्ट या लास्ट एलिमेंट के अलावा, पुट अ जीरो देयर, राइट। उसके बाद स्टेप 2, ये जो नीचे हमने पूरा लिखा है ये स्टेप 2 है, ठीक है। समझ आई शाहरुख खान, रिवाइज करा दिया मैंने, अगर अभी तक कुछ चीज समझ नहीं आई तो, ठीक है, समझ आ गई। सिलेक्ट कोड करें इसको, अभी मेरे ख्याल सोल्यूशन तो हो गया, लेट्स कोड इट। इसमें भी मल्टीपल केसेस हैं, ठीक है, 6 है और इस तरह दिए हुए हैं, सो कोड ये हमने पहले ही थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो इधर से स्टार्ट करते हैं आगे। सो लेट्स कोड इट। सबसे पहले हमने इंटीजर लेना है n, विच इज एन इनपुट, ठीक है। फिर उसके बाद इंटीजर ये हमने ले लिया रे इनपुट, ठीक है, इनपुट लिया है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, सो दैट्स जस्ट इनपुट। अब हमने क्या बताया था, पहला काम जो करना है हमने, पहला स्टेप क्या था कि दरमियान में अगर कहीं पे भी -1 आया उसको किससे रिप्लेस कर देना है, जीरो से। तो जस्ट गो i इक्वल टू 1, i लेस देन n-1, i प्लस प्लस, इफ राइट, इफ ऑफ i डबल इक्वल टू -1, ये मैं अब देखो मैंने 1 से स्टार्ट किया है और n-1 से नीचे नीचे तक गया हूँ, लास्ट एलिमेंट से नीचे नहीं, तो इसका मतलब है मैंने पहले और आखिरी एलिमेंट नहीं चेक किया, बाकी सारे एलिमेंट देखे, उनमें से अगर कोई भी -1 है तो उसको किससे रिप्लेस कर देना है, जीरो से।
दैट्स इट। ओके, ये हमने पहला स्टेप कर लिया, इसको मैं लिख लेता हूँ। ओहो, स्टेप 1 हो गया। अब आ जाते हैं स्टेप 2 पर। ठीक है, पहली कंडीशन, इफ ARR ऑफ 0 जो कि पहला एलिमेंट है डबल इक्वल टू -1 एंड ARR of n-1, n-1 is the last element, right? क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, is not equal to -1, right? मतलब पहला एलिमेंट -1 है, दूसरा नहीं है। क्या करेंगे हम इस केस में, बताओ बताओ, क्या क्या करना था हमने? लास्ट को भी पहले को लास्ट के इक्वल कर देना था, तो हमने क्या करना है, इधर ARR ऑफ 0 इज इक्वल टू ARR ऑफ n-1, राइट? ठीक है, एल्स नेक्स्ट केस, if ARR of 0 double equal to not equal to -1 and ARR of n-1 is double equal to -1, then अब क्या है कि लास्ट हमारा -1 है और पहला नहीं है, तो देन उल्टा केस हो जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक? शेरोज और सबको समझ आ रही है? अब आ जाते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप ये, अब हमारा पहला स्टेप सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, ये था कि अगर दोनों में से कोई एक -1 है। दूसरा स्टेप था कि दोनों ही -1 है। कंडीशन लगा देते हैं, if ARR of 0 double equal to -1 and ARR of n-1 is also double equal to -1, दोनों ही -1 है, देन क्या करेंगे, दोनों को 0 पुट कर देंगे। ARR of 0 is equal to 0 and ARR of n-1 is also equal to 0, करेक्ट? ठीक है, एल्स केस में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। एल्स केस है कि दोनों ही -1, पिछला अगला केस ये बनता है ना कि दोनों ही -1 नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं करना हमने, so just leave it as it is। ठीक है, अब नीचे, अब ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हमने प्रिंट करना है। ठीक है, अब हमने अरे बना लिया, अरे के अंदर जो रिप्लेस करने थे एलिमेंट हमने रिप्लेस कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने प्रिंट क्या करना है, सी आउट सम प्रिंट करना था। सम किसके इक्वल था, लास्ट माइनस फर्स्ट, ARR ऑफ n-1। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंट करनी है, क्योंकि ये नेगेटिव में भी हो सकता है। एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंट करनी है। उसके बाद क्या प्रिंट करना है, पूरी अरे प्रिंट करनी है। सी आउट ARR ऑफ I एंड सी आउट हैंडल। ठीक है, इसमें हमने न्यू लाइन, ये देखो मैंने इसलिए इसको इस तरह प्रिंट किया, ये इस तरह था। एक एलिमेंट प्रिंट करना है, फिर स्पेस प्रिंट करनी है, एलिमेंट स्पेस इस तरह करके, और फिर एट द एंड हमने न्यू लाइन प्रिंट कर देनी है। सो दैट्स व्हाई इट्स लाइक दिस। तो ये हमारा था स्टेप 3 कि आउटपुट करना है हमने। 3 स्टेप का कोड है, ये देख लो ये सारा। ठीक है, स्टार्टिंग से दैट्स द कोड। ठीक है, आई होपफुली इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। एक मिनट, सेव किया मैंने, कंपाइल हो रहा है। ओके, ये क्या हुआ, कैन यू प्लीज सेंड द कोड इन चैट, व्हाई डू यू नीड अ कोड
First tell me why you need the code. बिकॉज देखो, अगर मैं इस तरह आपको कोड दे दूंगा ना और आप यही कोड सबमिट कर दोगे उधर कोड फोर्सेस पे, क्योंकि फिर बाद में मैंने भी सबमिट करना है, तो थोड़ा सा इशू हो जाता है, समझ रहे हो ना। लेकिन मैं आपको कोई वीडियो दोबारा मैं अपलोड करूंगा, देख लेना तब। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वेट करो। अच्छा है, ओके। सो लुक एट दिस, पहले का ये आंसर था, राइट। हमारा क्या है, ये पहला टेस्ट केस, उसका आंसर आया 10 करेक्ट। सेकंड का ये भी ठीक है, ये तीसरी रे थी, तीसरी रे का आया 0, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, करेक्ट आंसर। हमारा कोड बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। सिस्टम टेस्टिंग तो नहीं पूरी हो रही भाई, हो गई आई थिंक, अब सबमिट हो जाएगा। यस, अब सबमिट हो सकता है। लेट्स सबमिट दिस। मैंने कोड सबमिट कर दिया, इधर से देख लेना, ठीक है, आके मेरी प्रोफाइल से। हो गया एक्सेप्ट, ठीक है। पहले वाला भी सबमिट कर लेते हैं। सिस्टम टेस्टिंग होती है, अभी हो गई है कंप्लीट। ओके, पहले वाला कोड किधर गया, मैंने इरेज कर दिया, इधर के वापस नहीं करेगा। ये ए वाली प्रॉब्लम का कोड है, वो भी सबमिट करके देख लेते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। तो दोनों एक्सेप्ट हो गए अब, ठीक है। अब अच्छा, मैं एक दफ़ा दोबारा बस आखिरी इसका कोड दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके। ओके, इसका साइज कम कर देते हैं। अच्छा, कोई चीज़ समझ ना आए तो बताना दोबारा। ये सिंपल पहले हमने लिखा कोड जो कि डिफरेंट टेस्ट केसेस चेक करने के लिए होता है। ये अब एक टेस्ट केस को सॉल्व करा, हमने सबसे पहले एन इनपुट लिया जो कि अरे की लेंथ थी, फिर हमने अरे इनपुट ली, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेप नंबर 1 किया जो कि हमने इधर मेंशन किया था, ठीक है। स्टेप 3 था आउटपुट, ठीक है। ठीक हो गया। स्टेप 0 इनपुट था, स्टेप 1 था, और स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 0 हमने किया, सबसे पहले इनपुट लिया, फिर स्टेप 1 किया कि हमने जहां जहां मिडल के अंदर -1 आया उसको हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। जहां पे हमने दरमियान में, ये देखो, इफ देयर इज अ -1 इन द मिडल पुट अ 0, ठीक है। अगर तो यहाँ पे -1 सेंटर में कहीं पे भी आया, लाइक हमने 1 से स्टार्ट किया, लेस देन n-1 तक गया, ठीक है। इफ देयर वाज अ -1 देयर, हमने इसको रिप्लेस कर दिया 0 के साथ, करेक्ट। देन स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 के अंदर ये कंडीशन थी। पहली कंडीशन हमने लिखी, इफ वन ऑफ देम इज -1 मेक देम इक्वल टू सेम। ये चीज हमने दो कंडीशन के साथ फिलफिल की है, ठीक है। ये पहली कंडीशन हमने ये लगाई कि अगर पहला एलिमेंट -1 है, दूसरा पहला एलिमेंट -1 है और दूसरा नहीं है, नॉट इक्वल टू -1, तो हमने क्या किया, दोनों को सेम करना था, तो हमने क्या किया, जो नहीं है
उसको इक्वल कर दिया जो है के, ठीक है। ये भी सेम उसी तरह किया, पहला नहीं था दूसरा था, तो हमने पहले दूसरे को मतलब लास्ट वाले को पहले के इक्वल कर दिया। देन नेक्स्ट कंडीशन हमने लगाई कि बोथ ऑफ देम आर -1, ठीक है। हमने दोनों का इफ पहला भी -1 के इक्वल है, आखिरी भी -1 के इक्वल है, पहले को भी 0 कर दिया, दूसरे को भी 0 कर दिया, दैट्स इट। देन नन ऑफ देम इज -1, नन ऑफ देम -1 है, कुछ भी नहीं करना हमने, ठीक है, लीव देम एज इट इज, ठीक है। हमने वही किया, हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। थर्ड केस था आउटपुट, और अब हमने पहले डिस्कस किया था सम किसके इक्वल है, सम इज लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो हमने लास्ट माइनस फर्स्ट किया, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ली, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमने आउटपुट नहीं करनी। उन्होंने लिखा हुआ था इधर प्रॉब्लम के अंदर कि हमने उन्होंने लिखा था कि एब्सोल्यूट सम प्रिंट करना है, मिनिमम एब्सोल्यूट सम, ठीक है। वेयर इट इज, यस ये है, सच दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सम इज मिनिमाइज। और इधर हमने उसने आउटपुट में बताया ऑन द फर्स्ट लाइन आउटपुट द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट, ये सिंबल जो होता है, ये बाहर जो होती है, बाहर साइडों पे लगी होती है, दैट्स अ सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट, ठीक है। वो हमने प्रिंट कर दिया, एंड देन आउटपुट हमने पूरी अरे भी आउटपुट कर दी, जो कि ये आउटपुट वाले सेक्शन में उसने कहा हुआ था। इसके बाद देन ऑन द सेकंड लाइन आउटपुट एन इंटीजर्स a1 a2, ए वाली जो अरे थी लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट यूनिट, जो कि हमने वो भी प्रिंट कर दी, राइट। सो दिस इज द सोल्यूशन, होपफुली आपको हेल्प की होगी। मैं इसको यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा। मैं दोबारा से अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ, ताकि आप लोग अगर आपको इसकी दोबारा रिकॉर्डिंग देखनी हो, मैं भी रिकॉर्डिंग पे लगा दूंगा, ठीक है, ताकि आप दोबारा उधर से देख सकें, ठीक है, करेक्ट। और अगर पॉसिबल है तो सब्सक्राइब कर देना उसको, ताकि आपको हो जाए, नहीं तो वैसे मुझे कोई वैसे ज़रूरत नहीं है। सो अगर अच्छा कोई फीडबैक है तो भी दे दो इधर, हाँ, एनी फीडबैक। ये किसने ग्रेट एक्सप्रेशन, थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स कि यार अगले नेक्स्ट टाइम कुछ इस तरह की प्रॉब्लम करनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन का तरीका ठीक नहीं है, या फिर कोई नेगेटिव फीडबैक है वो भी दे दो, ताकि नेगेटिव फीडबैक को हम पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम। एक्चुअली मेरे पास ना वो राइटिंग पैड नहीं है, ठीक है, जिससे मैं आपको ना लाइक राइट करके, इसलिए मैं उसको टाइप करके वो खुद आपको बता रहा था। सो आई कांट लाइक राइटिंग पेन नहीं है मेरे पास, तो होपफुली मैं ले लूंगा उसको जल्दी, फिर इजी हो जाएगा। सो ओके, ग्रेट। आई थिंक अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम नाउ। आई थिंक मैं इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। वेरी नाइस।